Lord, church. Welcome to Father's Care Service Online. We're truly blessed to have you here today, and we hope that today's service will be so fruitful in your life. Now, before we get started, let's kick off with the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. We have a great service in store for you today. Stay tuned and get ready to worship and praise with the Father's Care worship team. God bless. I want you to join us in worship as we lift up our worship unto our Maker. Let us do it with an open heart and tell Him how much we adore Him. Amen. Thank you, Jesus. Let's worship.
पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे, बाहों में तेरे। Yes, Jesus. तू चाहे, yes Lord, मैं सदा cry it out, yeah. We worship you, Jesus. Come on, let's cry out unto him. Let's give him praise, give him glory, give him adoration. We cry out unto you. Yeah, yeah. Yes, Jesus. Yes, Lord, we worship you, Lord. Daddy mercy, we sing. Daddy mercy, mere liye aani anashki nahi. Tu chahe sirf bhलाई mere jeevan mein sada. तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे मेरे जीवन में सदा। Yes, we worship you, Jesus. Yes, we give you praise. For your thoughts towards us are of peace and not of evil, to give us future and a hope. That's why we praise you right now, Jesus. We worship you and we give you praise. We adore you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing God's praise. Oh, Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise. Yes, Lord. Forevermore. Endless days. Yes, Jesus. Oh, Lord, our God. Oh, praise the name
cry out unto Him. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, that your presence is mighty in this place. That same presence will touch the people watching. Lord, be with every viewer watching right now. Fall fresh upon them. Heal them, set them free, dear Jesus. Whatever tribulation or turmoil, whatever season they're going through, Lord, let your peace that surpasses all understanding guard their heart and mind. Lord, renew them, renew their strength like the wings of eagles, Lord. For your thoughts towards us of peace and not of evil, to give us a future and a hope. And Lord, we rely in you. We trust in you. And above all, we love you, dear Jesus. Lord, I just pray that you be with your servant as they bring word, Lord. That it falls on good ground, dear Jesus. That it manifests into flesh, Lord. That it's something we can use, something that we need to carry on, Lord. I just trust that your word goes to the right place. Lord, we just trust in what you're doing. It is marvelous in our eyes. And we give you thanks and we give you glory. And above all, we love you, we love you, we love you. In Jesus' mighty name. And everybody said, amen, amen. So let's get into it. Let's get ready for the word. Get your Bibles ready and your notepads ready. It's time to get into the word and give God glory. Amen. Praise the good Lord. The Bible says, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यही वह दिन जिसे यीशु ने बनाया है, जिसमें हम आनंद मनाए और खुश रहे। सबको स्वागत करते हैं जहाँ से भी आप जुड़ते हो आज सुबह का परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। जैसे धर्मशास्त्र से हम पढ़ते हैं 2 Corinthians chapter 5 और verse 15 से हम देखते हैं। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। इसमें इस प्रकार लिखा है, And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we know Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Let's bow our head in prayer. Father, we say thank you for your word, which is about to reach your children, your beloved children, O God. Prepare their hearts, their minds, O Lord, that they may come to know that you are the Lord and Savior. Lord, I bow before you to give you all the glory and honor in Jesus' name. And everybody said, Amen. परमेश्वर के वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए अपना प्राण को दिया है, और उसमें यह भी कहता है कि हम अगर आज जीते हैं तो हम खुद के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के लिए जीते हैं। जब वो कहता है कि मानव जाति, इसका मतलब यह है कि उसने अपने प्राण को दिया सारा मानव जाति, पूरी पृथ्वी के लिए। परमेश्वर के निगाह में, परमेश्वर के नजर में हर एक इंसान जो है, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो सब एक है। हम में से कोई बाटा नहीं है, या हम बटा नहीं है कि हम इस दल के हैं या उस कौम के हैं। परमेश्वर के निगाह में एक अमीर
एक गरीब, एक धनवान व्यक्ति भी है, एक कंगाल है, जो भी है, परमेश्वर के नजर में हम सब एक हैं। उसी निगाह से परमेश्वर मानव जाति को देखता है। बाइबल और आगे कहता है कि हम सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले अपने जीवन में प्रभु यीशु को रखें, परमेश्वर को रखें, क्योंकि उसी ने हमें, मानव जाति को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है। हम जो भी आज है सब उसी की कारण है और उसी की देन है। बाइबल ये भी कहता है कोलोसियंस 1 और 16 में कि all things were created for him, through him and for him। जितना कुछ बना है आज इस धरती के ऊपर, जो भी कुछ तुम देखते हो कि इस धरती पर, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी बना है, चाहे वो एक रिश्ता हो, एक इंसान हो, चाहे उसके धन संपत्ति हो, चाहे उसके घर, उसके घराना हो, उसके परिवार हो, जो कुछ भी है, बाइबल कहता है, बाइबल बहुत साफ है, कोलोसियंस 1 और 16 में वो कहता है कि सब कुछ उसी के लिए बना है, हमारे लिए नहीं। हम जो रात दिन मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, और हमेशा हम एक दूसरे से बोलते, अपने दोस्तों से बोलते हैं, अपने यार दोस्त से कहते हैं, अपने घर वालों से कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया और ये मेरा मेहनत है, इस मेहनत के द्वारा आज मैंने यहाँ पहुँचा हूँ। या अगर कोई अपने कोई एक पोजीशन होल्ड करता है, या पढ़ लिख कर बहुत विद्वान आदमी हो, इंसान हो, जो कुछ भी वो इंसान करता है, बाइबल कहता है कि सब कुछ उसके बनाने वाला, उसको उठाने वाला, उसके कार्य में काम करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। बिना उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये सही है कि हम बोलते हैं ये मेरा मेहनत है, मैंने बहुत मेहनत किया यहां पहुंचने के लिए। जब एक दूसरे से कहते हैं तो ऐसे हम कहते हैं, लेकिन बाइबल उसे नहीं बताता है। सब कुछ उसी ने बनाया, किसके लिए? वो खुद के लिए बनाया है। हर एक चीज के पीछे और आगे सिर्फ उसी का नाम है। जय जयकार, बड़ाई उसी की होना चाहिए। कई बार हम लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ये मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं अपने मेहनत से पहुंचा हूं, और कहते हैं कि ये जो कुछ मैं बनाया है ये मैं अपने घर वालों के लिए बनाया, अपने परिवार के लिए बनाया, अपने रिश्तेदार के लिए बनाया। प्रभु यीशु ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि जो कुछ बना है वो मैंने बनाया और वो मेरे लिए बनाया। हम अपने बेटे और बेटियों के साथ में जब मिलते हैं, बैठते हैं, तो कितना खुशी से हम बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसको मैं पढ़ा लिखा कर कुछ बनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल कहता है वो जो बेटा है, वो जो बेटी है, वो परमेश्वर का है, उसके संतान है। हाँ, हमारे घर में जन्म जरूर लेता है, लेकिन उसको जो देख रेख करता है, उसकी जो सांस उसके चलता है, वो देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। हम अपने बच्चों के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। इसके बीच में जब हम उनके साथ नहीं हैं, तो उसके साथ अगर कोई है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का जो एंजल है बच्चों को रक्षा करता है। इस कारण परमेश्वर ने कहा
कि जिस दिन तुम प्रभु यीशु को अपनाते हो, जिस दिन तुम अपने जीवन को इस बात को मान लेते हो और इस बात को समझ जाते हो कि जो कुछ तुम है आज तुम्हारा नहीं है, जो कुछ तुम है वो प्रभु यीशु का है, परमेश्वर का है। जिस घड़ी ये बात हमारे समझ में आता है, उस समय, उस घड़ी हमारा जीवन में एक बदलाव आता है। हमारे सोचने का जो ढंग है वो बदल जाता है। बाइबल कहता है, एस द मैन थिंक सो इज ही। जिस प्रकार से तुम सोचता है वही है तुम। परमेश्वर के वचन कहता है कि हमारे समझ में जब इस बात को आता है कि ये सब कुछ परमेश्वर का देन है, हमारा कुछ नहीं है, हम सिर्फ चंद दिनों के मेहमान है। बाइबल कहता है जोब 14:1 में कि इंसान जो नारी के द्वारा जन्म लेता है वो चंद दिनों के मेहमान है और सारी समस्या से भरा है। कब हम कह सकते हैं कि हमारा पास सब कुछ है और हम जिंदगी भर और युगानी युग तक और हमेशा ऐसा रहेंगे? कब कह सकते हैं? आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान ये बात को कह नहीं सकता कि जो कुछ मैंने बनाया ये हमेशा मेरे पास रहेगा और सब कुछ मेरा है सब दिन के लिए। ऐसा बात नहीं है कभी। दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के समझना एक बात है। वह जिस दिन वो समझ जिसको आ जाता है कि हमारी बनाई हुई चीज हमारी नहीं है, वो सब परमेश्वर का है, उसी का देन है और उसी का है। हम जो इस पृथ्वी पर ये जो जर्नी है, जो सफर है, जिंदगी का सफर है, जब तक सफर है तब तक जो कुछ परमेश्वर देता है उसको काम मिला है, उसी के काम मिला है, उसी के बढ़ाई के लिए काम मिला है। यही बाइबल कहता है, तुम खुद के लिए नहीं जियो लेकिन परमेश्वर के लिए जियो, क्योंकि उसने अपना एक लौता पुत्र को दिया है कि जिसने अपना प्राण दिया तुम्हारे लिए और हमारे लिए। तो और तीसरा दिन मुर्दा में से जी उठा। और जब आज हम उसको, उस बात को समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो ये बात समझ जाना चाहिए, ये सब उन्हीं का है। जो कुछ भी आज है ये परमेश्वर का है, उसी का देन है और उसी का है। तो हम जब जीते हैं आज, उसी के लिए जीते हैं। आगे बाइबल कहता है वर्स 17 में, Therefore if anyone in Christ is a new creation, all things have passed away, behold all things have become new। बोले जो कोई प्रभु यीशु में है, बोले देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। जिस घड़ी तुम प्रभु यीशु को अपनाते हो, जिस घड़ी परमेश्वर को स्वीकार करते हो, बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के संतान बन जाते हो। जब तुम परमेश्वर के संतान बनते हो, उसका बेटा और बेटी तुम जब बनते हो, तो बाइबल कहता है कि हम उसी के निगाह से एक दूसरे की ओर देखें। हम अपने शारीरिक निगाह से नहीं। हम जब कोई अमीर को देखता है, हम किस निगाह से उसको देखते हैं? एक गरीब आदमी को देखता है, उसको किस निगाह से देखते हैं? एक मानजान इंसान के साथ में जब आप है, उसको तुम किस प्रकार से उसके साथ में मेल मिलाप करते हो? और जब तुम एक ऐसे इंसान से मिलते हो जिसका नाम, जो बदनाम है, जो कुछ है, उसको तुम किस प्रकार से मिलते हो? बाइबल कहता है अगर तुम प्रभु यीशु में है,
ये जो दुनियादारी के बात है, ये सब दुनियादारी के लोग में ये सब पाए जाते हैं। जलन भाव, भेदभाव और कपट, ये सब दुनियादारी के लोग में है। लेकिन जिस दिन तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हो, प्रभु यीशु को अपनाते हो, उस दिन तुम परमेश्वर के संतान हैं। और परमेश्वर के संतान होने के नाते तुम्हारा सब भाई बहन है। एक दूसरे से जब तुम मिलते हो, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से मिलता है, वो अपना भाई से मिलता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन तुम्हारे नजर में वो तुम्हारा भाई और तुम्हारा बहन है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को अपनाया। वो इसलिए क्योंकि तेरा जो स्वर्गीय पिता है और उसका एक ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम किसी व्यक्ति को उस नजर से नहीं देखें कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या खराबियां हैं। उसके खराबी को हम नहीं ढूंढे। उसके सामने से जब हम देखते हैं, मिलते हैं, हम कभी उस निगाह से नहीं देखे कि हम एक जजमेंटल निगाह से, कि इसके ऊपर से लेकर नीचे देखते, उसके बारे में बात करें थे। ऐसा हम नहीं करते। बाइबल कहता है, हमें सिखाता है आज कि पुरानी बातें बीत गई, जो कुछ वो इंसान कल था वो खत्म हो गया। आज एक नया जीवन है प्रभु यीशु में, और इस नए जीवन में ये व्यक्ति परमेश्वर का संतान है और मेरा भाई है और मेरा बहन है। इसी निगाह से बाइबल कहता है तुम एक दूसरे को हमेशा देखते रहना। कभी अपने तरफ से किसी को भी एक गिरा नजर से नहीं देखना, परमेश्वर के आंख से देखना चाहिए, क्योंकि हम सब परमेश्वर का संतान हैं। जब हम ये करते हैं, जब हम उसमें आते हैं और ये काम करते हैं, हमारा समझ, हमारे जो सोचने का ढंग है, जब वो बदल जाता है, जब इस बात को हम समझ जाते हैं कि वो है कौन, वो मेरा भाई है, मेरा बहन है, वो मेरा परमेश्वर का संतान है और उससे मुझे प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सिखलाया हमें कि एक दूसरे से प्यार करें। जिस घड़ी इस बात को हम समझते हैं, जैसे हम इस बात को समझ जाते हैं, तो बाइबल कहता है जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं और जब उसमें आ जाते हैं, तो हमारे लिए एक वरदान को रखा है, अ गिफ्ट फॉर एवरीवन हु रिसीव्स क्राइस्ट। वो कहता है बाइबल में कि हर एक मानव जाति के लिए, हर एक बेटा और बेटी के लिए मैं एक वरदान दिया है और एक वरदान रखा तुम्हारे लिए। जिस घड़ी तुम प्रभु यीशु को अपनाते हो, बाइबल कहता है उसी समय परमेश्वर एक वरदान तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अंदर वो देता है। उसी घड़ी आज कई जगह देखो कि ये वरदान को बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐसा गिफ्ट है जो बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते। इस गिफ्ट को, इस गिफ्ट में बहुत बड़ा परमेश्वर की महिमा है इसमें। और बाइबल कहता है, वो हमें मिलता है वर्स 18 में, नाउ ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. What a ministry to have. Above all other ministries, what a beautiful gift that God is giving to mankind. The gift of reconciliation. How do we reconcile our brothers and sisters to God Almighty?
ये जो वरदान है, ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। हर एक इंसान को परमेश्वर दिया है इस वरदान को। जिस दिन तुम प्रभु यीशु को अपनाते हो, ये वरदान तुम्हारे अंदर है कि तुम कैसे एक दूसरे को सुलह करते हो परमेश्वर से। कैसे आज तुम अपने मां बाप, भाई बहन को परमेश्वर से सुलह करते हो। वो सामर्थ, वो शक्ति, वो कामयाबी हर एक में परमेश्वर दिया है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ये वरदान दिया है कि जो लोग तुम्हारे जो पड़ोस के लोग हैं, तुम्हारे जो यार दोस्त है, जो तुम्हारे संगे रात दिन बैठते उठते हैं, उन सब लोग तक ये परमेश्वर का पवित्र सुसमाचार, पवित्र संदेश, शुभ संदेश किस प्रकार तुम उन तक पहुंचा सकते हो, किस प्रकार उस व्यक्ति को तुम परमेश्वर के संतान बना सकते हो। ये जो मिनिस्ट्री है, ये परमेश्वर हर एक इंसान को दिया है। हर एक के घर में जो आज परमेश्वर को जानता है, हर एक के गांव में जो आज परमेश्वर को जानता है, उसके पास में ये मिनिस्ट्री है। जिस घड़ी वो उठकर जाकर किसी भाई या किसी बहन को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बताता है, वो बाइबल कहता है कि उस घड़ी परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, तुम्हारे और उसके बीच में वो सुलह करेगा, परमेश्वर तक उसको पहुंचाएगा कि वो व्यक्ति अपने जिंदगी में, अपने जीवन में एक कामयाबी पाए, एक खुशी के जीवन वो प्राप्त कर सके। परमेश्वर जिस दिन तुम्हारे जीवन में आता है, the day Jesus enters your life, the first thing you receive is love, joy and peace. अगर आज तुम चाहते हो कि तुम्हारे पड़ोसी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे यार दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग परमेश्वर को अपनाए और वो प्यार उस घर में आए, नफरत हटे और परमेश्वर का प्रेम आए, तो आज उन लोगों को प्रभु तक, उसके बीच में एक सुलह तुम कर सकते हो। बाइबल कहता है कि वो ताकत, वो सामर्थ तुम्हें दी गई। जहां से भी तुम सुनते हो, जिस देश से सुनते हो, ये आपके लिए है ये वचन। इस बात को हम जान जाए, इस बात को हम मान लें कि परमेश्वर पुकारता है अपने बेटे और बेटी को। परमेश्वर हर एक इंसान को पुकारता है, हर सुबह से लेकर शाम तक, कि मेरा बेटा, मेरे बेटी, मुझे पहचान, मेरे पास आ। इसीलिए वो गिफ्ट जो है, वो वरदान जो दिया है, वो हर एक इंसान को दिया है, ताकि इस बात को तुम समझ लो कि हमारा जो मकसद है जीने का, हमारे जो कार्य जो हमारे हाथों में दिया है, चाहे जो भी आप है, शायद आप मन में सोचता होगा कि मुझ में वो नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है। शायद तुम एक बहुत अच्छा गीतकार हो जो गाने को गाता हो, प्रभु के लिए तू गाना गाइए। अगर आज म्यूजिशियन है तो परमेश्वर के लिए आज तुम वो म्यूजिशियन बन जाओ। अगर आज तुम प्रचार करने के, अगर वो गिफ्ट है तो तुम प्रभु के वचन को प्रचार करो। अगर आज तुम्हें वो गुण दिया है परमेश्वर की, एक दूसरे को मदद करो, मदद करने से परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, तो तुम वही करो।
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक वो इंसान तुम बन जाओ जहां पे तुम मानव जाति को परमेश्वर तक मिला सकते हो। आगे कहता है वर्स 19, that is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके अंदर में होकर हर एक इंसान तक वो शुभ संदेश को पहुंचाता रहा। हर एक इंसान को वो प्यार बांटता रहा। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह के अंदर होकर और लोग तक पहुंचा। और परमेश्वर के पास जब तुम आते हो, जब तुम्हें वो देखता है, वो तुम्हारे कमजोरी को कभी नहीं देखता। हम इंसान एक दूसरे के कमजोरी को ढूंढते रहते हैं ताकि हमें सलाह देने के लिए कुछ मौका मिले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के निगाह से देखते हैं। अगर इंसान के निगाह से देखा तो तुम्हें दूसरों का कमजोरी तुम्हारे आंख के सामने आएगा। दूसरों के कमी जो है वो तुम ढूंढोगे इंसान के जीवन में, लेकिन परमेश्वर के निगाह से जब तुम देखते हो, प्रभु यीशु के निगाह से जब तुम देखते हो अपने भाई, अपने बहन को, अपने यार दोस्त को, उसमें तुम कमजोरी को नहीं ढूंढोगे। हर एक कमजोरी को तुम ढांक कर और उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करोगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। बाइबल सेज गॉड इज लव, 1 जॉन 4:8। परमेश्वर जो है वो प्रेम है। प्यारे दोस्तों, इस बात को आज हम जान लें कि परमेश्वर कोई डरावनी या ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई डरवाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो प्रेम से भरा है। उसका नाम ही प्रेम है। जब वो तुम्हें देखता है वो प्यार से देखता है। वो ढूंढता है वो रास्ता को कि किस दिन तुम उसकी ओर देखते हैं, किस दिन परमेश्वर का वचन सुनते सुनते तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे वो समझ आ जाएगा कि जो परमेश्वर है जिसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया वो मुझसे बेहद प्रेम करता है। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। जिस घड़ी ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगा, उस समय तुम प्रभु यीशु के संतान बनते हो। और बाइबल आगे कहता है, नाउ देन वी आर एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट, as though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर ढूंढता है। हर सुबह से लेकर शाम तक वो ढूंढता है तुम्हें कि कब तुम्हारे समझ में वो आएगा कि वो प्रभु कितना प्रेम करता है तुझसे। आगे कहता है वर्स 21 में, For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. बाइबल कहता है जो पाप से अज्ञान था, जीसस यीशु मसीह जिसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई पाप नहीं था, जो पाप से अज्ञान था, परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु मसीह को पापी ठहराया।
किसके लिए? तुम्हारे लिए और हमारे लिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पापी ठहराया और कहा उसके धार्मिकता से, प्रभु यीशु के धार्मिकता से तुम आज धार्मिक बनते हो। प्यारे भाइयों बहनों, जो आज प्रभु यीशु मसीह में है वो धार्मिक व्यक्ति है, और जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसमें परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर होता है। एक दूसरे के प्रति वो प्रेम दिखलाता है। एक दूसरों को जब वो मिलते हैं वो प्रेम से मिलते हैं और हमेशा उसकी अच्छाई चाहता है। जब परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर आता है तो बाइबल कहता है कि जो कुछ तुम चाहते हो अपने दोस्त के लिए, अपने यार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, जो कुछ भी तुम चाहेगा हमेशा अच्छाई चाहेगा। अपने दुश्मन के लिए भी तुम अच्छाई चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तुझ में है। प्रभु यीशु आज हमारा हर एक अधार्मी को लेकर हमें धार्मिक बनाया। जो कोई आज प्रभु यीशु पर विश्वास लाता है, ईमान लाता है, बाइबल कहता है वो परमेश्वर का धार्मिक इंसान है। परमेश्वर का सुंदर वचन आप सब तक पहुंचा और ये मौका है जबकि तुम प्रभु यीशु को स्वीकार कर सकते हो। ये वो घड़ी है जब तुम अपने आप में, अपने मन से प्रभु यीशु को स्वीकार कर सकते हो। आइए चलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। हे हमारे महान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते सुंदर सा वचन के लिए कि परमेश्वर तुम हम मानव जाति के लिए धार्मिक बना, ताकि हम तुझ में विश्वास करके धार्मिक इंसान बन सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हम सबके बीच में तो अपना पवित्र और बहुमूल्य वचन को ला, हर एक के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को कर। धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से, और हम सब मिलकर कहे आमीन। Amen. Thank you so much for joining us once again. We truly hope that you've been able to find a newfound strength within your struggle, and that the word has been able to inspire you to tell your friends and family about the revelation that you've received today. So come on, let's say the declaration of 2020 to finish off the service together. 2020 is my year of new wine. I am living a surrendered life to God-given vision, wisdom, and purpose. I am his vessel, a new wineskin, to receive, conceive, and give birth to the new he wants to do in and through me. He is enlarging my capacity to receive all that he has in store for me. Jesus, pour this new wine out of me that will draw souls from the four corners of this earth into your kingdom. Teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. Help me to live, love, and serve like you, Jesus, that it is no longer I who live, but Christ lives in me. My body is your temple of the Holy Spirit. Not my will, but yours be done. Thank you, Lord, that you have crowned 2020 with your goodness, and your path for me is dripping with an overflow of your abundance. 2020 marks a new era, a new dimension propelling me to the fulfillment of my destiny. This is my year. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much for joining us once again. We're so excited to join with you next week. But until then, continue to send your prayer requests and your praise reports. We'd love to hear from you guys, and we'd love to assist you in your walk with Christ. Until then, stay blessed.